Hello students. Now in last class we had discussed about the non-cooperation movement. We have seen the course of non-cooperation movement, and we have also gone through the participation of people in the movement. When we are discussing about the partition of people in the movement, we have analyzed how different group of people interpreted the meaning of non-cooperation. We have seen how movement had been supported in terms. We have also discussed about how movement shot by peasants, plantation workers, and also the tribes. So these were the major sections of Indian society. If you remember, when we are discussing about participation of people, we come to know that these different sections of society got different notions regarding the Swaraj, means the objective of non-cooperation. We have also seen peasants under the leadership of Baba Ramchand, for instance, take one example. They were demanding regarding the reduction in taxes, as well as it was also come to their minds, and it was in the atmosphere that Congress and Gandhi was going to call for no tax campaign. We have also seen houses of talukdars, zamindars were attacked, bazars were looted. Now, supporting Gandhi, participating in the non-cooperation movement, but these are the violent way of participation. Congress and Gandhi never permit such kind of way of participation. One more thing, we have gone through that Congress never supported or asked for no tax campaign. It was one of the major issues on which Congress and peasants were having great differences. Peasants felt that Congress is standing with the landlords. We have also discussed, it was a fact that there was a group of landlords who were financing Congress movement, supporting Congress. Even a number of landlords were the members of Congress. So it was some contradictory issues. In tribal also we have seen the example of Uddam Hills movement. Aluri Sitaram Raju, he was taking the name of Gandhi. He wore Gandhi cap, raised the slogan of Gandhi Baba Ki Jai, but he was following guerrilla means of war, again violence. And what plantation workers got the notion regarding the non-cooperation? They felt that Gandhi Raj is coming, and in Gandhi Raj they would be allowed to leave those farms, return back to their homelands, means their native village, where government will give land to them for their means of living. Nowhere Congress has stated this. But this is the enthusiasm
people who are suffer by different ways. Different groups of people, different sections of societies were suffered through different ways. And they all were looking the solution of their sufferings in the movement. At one side, these contradictions were going on, but there is a positive point on which we have discussed. The positive point was different sections of societies were looking with a great hope towards Congress and Gandhi. It also underlined that Congress emerged as a national party and Gandhi emerged as a national leader. That is the positive things. But what had happened in the movement? Whether the movement achieved its objective? The objective was pressurizing British government for getting more and more rights for Indians. In nutshell, you can understand that the objective of non-cooperation was self-rule, Swaraj. But the movement had withdrawn in February 1922. If you have been asked, why did Gandhi decide to withdraw the movement, non-cooperation movement? Normally, we are very much familiar about this particular topic. On a number of occasions, we have read, we have heard, we have seen that Gandhi had withdrawn the movement due to the Chauri Chaura incident, in which 22 policemen were killed during a clash between the Satyagrahis and the police. So it was a violent incident, and due to that Gandhi had withdrawn the movement. Since Gandhi was against the violence, so Gandhi has withdrawn the movement. My dear students, this is not the complete fact. There were a number of consequences, there were a number of reasons that compelled Gandhi to withdraw the movement. Chauri Chaura incident was an immediate cause, tatkalik karan. But there were a number of other factors that had already reduced the intensity of the movement, participation of the movement, participation of the people in the movement. So, a number of facts were there. For 1 mark's question, if you have been asked, why did Gandhi withdraw this non-cooperation movement? Then writing about the Chauri Chaura incident is all okay, no doubt. This Chauri Chaura incident will be the immediate cause. It is absolutely correct. But if you are asked the question in detail, if you require to write the answer in detail, is why did Gandhi decide to withdraw the movement? That means you are required to write number of other facts too. तात्कालिकरण का तात्पर्य क्या होता है कि उस घटना के बाद इमीडिएट एक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके पहले भी कई सारी चीजें हो चुकी होती हैं जिसके कारण बाकी सारे ऑप्शंस बंद हो चुके होते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने नोटिस किया होगा कई बार क्लास में ही आपके दो फ्रेंड्स आपस में बहुत बुरी तरीके से झगड़ने लगते हैं, फाइटिंग हो जाती है, और अगर कारणों की तलाश की जाती तो होती है, सर ये जो है ना इसका कॉपी इसके डेस्क के पास से हटा दिया था, पीछे रख दिया था, इसी बात पे गाली होने लगी और झगड़े हुए। क्या इतनी मामूली बात पे ये झगड़ा
हो सकता है। और जब उसकी तहकीकात की जाती है तो ये जानकारी होती है कि इन दो बच्चों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध बने हुए थे। कई कई बातों पर इन दोनों में पहले भी आपस में बहस हो चुकी होती थी। तो इन दोनों के बीच पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ एक निगेटिव थॉट्स थे। इसलिए एक छोटी सी भी घटना हुई, उसने एक विभत्स रूप ले लिया मारपीट के लिए। आप ऐसे ही कह सकते हो कि बारूद पहले से जमा होता है केवल माचिस की तीली जलाने के लिए। तो बारूद क्या क्या था, अर्थात उसके पहले और क्या क्या कारण थे जो पहले से मौजूद थे, जो धीरे धीरे आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे थे। अब उसको देखिए एक एक। The movement was turning violent and Satyagrahis needed proper training before they were ready for a mass struggle. If you remember, we have already discussed the qualities of a Satyagrahis. When Gandhi was describing the means of Satyagraha, he described that a true Satyagrahi never lose his or her patience. A true Satyagrahi never be a violent. But what had happened? और गांधी इससे क्यों परेशान हुए थे? क्योंकि अंग्रेजी सत्ता का मुकाबला आप हिंसा से नहीं कर सकते हो। यदि आप एक पत्थर चलाओगे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंसा करोगे, तो सत्ता उनकी, पुलिस उनकी, सैनिक उनकी, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। वो आपको बर्बाद कर देंगे, बुरी तरीके से आपको परेशान कर देंगे, आपको जेलों में डाल देंगे, बड़ी संख्या में जेलों में डाल दिया जाएगा आपको। तो सप्रेसिव मेजर्स, उनके पास पूरी ऑथोरिटी है। यू कांट कीप योरसेल्फ in such kind of condition that lead to weakening the movement. और ये हो रहा था जब movement had been started. Some reports were coming regarding the small clashes between the police and the Satyagrahis, but it was not a kind of violence. It was not a major issue of violence. So things was going on, but the frequency of such kind of clashes were increasing day by day, and that was creating problem. It was a matter of concern for Gandhi and Congress, because once Satyagrahis lose their patience and they become violent, it opened new dimension, new phase of suppression by the hands of the Britishers. They would become free to take whatever action they like to do. They have shown already what they can do. When we were discussing about Jallianwala Bagh massacre, what had happened? What Dyer has said? My attempt was to create a fear to the minds of Indians. No Indians could raise their head in future in front of the British government. But when Satyagrahis were following the path of non-violence, it created a moral effect on the minds of the British police administrations and the military also. A number of occasions. It has been noticed. It is in the part of the record that when the British police had been ordered to do lathi charge on the Satyagrahis, they refused to do. Why? Because they felt that Satyagrahis were unarmed, and what they were doing, they were just sitting or just leading their procession peacefully without creating any kind of disturbance. So this was the moral victory. But once Satyagrahi become violent, it gives a bigger chance for the Britishers to suppress the movement, and it was started
conducted. So it was a major issue. One more thing. Actually, when the movement had been launched, people had interpreted that movement would continue for a week or a month. But the movement had continued for more than a year. So actually, we Indians were not ready for such kind of long movement. हमारी तैयारी अधूरी थी. हम मानसिक रूप से इस अवस्था के लिए तैयार नहीं थे, और जिसके कारण हमारे संयम में कमी आ रही थी और हम अग्रेसिव होने लगे थे. यानी a number of occasions सत्याग्रही become violent. तो एक इशू ये था. Second important, movement had failed to produce alternative for goods and services boycotted by the Indians. याद कीजिए, जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे तो हमने पढ़ा स्वदेशी एंड बायकॉट were the two major methods, two ways to show their non cooperation. तो बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को, फॉरेन सर्विसेज को, यानी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड सर्विसेज को. स्कूल कॉलेजेस उनके द्वारा उसमें नहीं जाना है, उनके द्वारा बनाए गए सामानों का उपयोग नहीं करना है, उनके इंस्टीट्यूशंस में वर्क नहीं करना है, पुलिस में काम नहीं करेंगे, मिलिट्री में काम नहीं करेंगे. दिस वाज द वे. तो ये घटनाएं तो चल रही थी, घटनाओं का क्रम. तो यह बायकॉट आप कर रहे हैं, तो देयर वाज अ नीड टू हैव द अल्टरनेटिव इन द नेम ऑफ स्वदेशी. द मूवमेंट वाज आल्सो producing the alternatives of those goods and services. If you remember, why did movement slow down in towns? It was a major issue because movement failed to produce alternatives. खादी क्लोथ्स जो भारत में बन रहे थे, it became expensive. How long common Indians could afford wearing khadi? Even though it was manufactured in India, but it was expensive in comparison to the British manufactured clothes. And as I have told you, we were not ready for such a long period movement. So people turned towards those goods again. Movement also failed to provide adequate number of school colleges to enroll Indian students who had left the British schools, colleges, or the school colleges run by the government. How long lawyers, workers, teachers, professors, professionals, those who have left the British job, they could remain unemployed. They all were finding the ways to earn their means of livelihood. My dear, working for the nation is supreme goal. But for fighting for that, achieving the goal, we need some means of sources to get to a square of meal also. They were also carrying the responsibility of their families. Even though the methods of non-cooperation movement was very much simple to follow. So, a massive number of Indians participated. But again, what I have mentioned again and again, we were not ready for such a long period movement. यहाँ भी problem है. So people again went back towards those services and goods, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव दे नहीं पाए. तो एक ये भी कारण थी, और ये बहुत बड़ी कारण थी जिसने मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया. लोगों की पार्टिसिपेशंस
थोड़ी सी घटती हुई प्रतीत होने लगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब तीसरा कारण कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर हमने देखा है कि क्या होगा। पहले बात करते हैं कि इस मूवमेंट को लेकर के लोगों के नोशंस जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर हैविंग डिफरेंट नोशंस, हो क्या रहा था? इंडियंस वर नॉट वर्किंग विथ सेम प्लान एंड स्ट्रेटजीज। हर ग्रुप अपने तरीके से मूवमेंट में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था। They were having their own ways to be a part of the non-cooperation. अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच एक तालमेल नहीं बनेगा। अब देख लीजिए, जमींदार एक तरफ हो जाते हैं और पीजेंट्स एक तरफ हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। परिणाम भारत की राजनीतिक लड़ाई जो आजादी के लिए, स्वराज के लिए चल रही थी, अभी आजादी के लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण स्वराज की जब बात करेंगे, तो वहां पे ये मूवमेंट कमजोर होने लगी। तो अब क्या होगा? Different people, different understanding, ultimately weaken the movement. Next one. अब difference within the Congress, यहां की कुछ differences हैं। जो परिवार इस आंदोलन को लीड कर रहा है, उस परिवार में कुछ खटपट भी है। यानी कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स, those who were having the differences with Gandhi on the issue of non-cooperation. These group of moderate leaders led by C.R. Das and Motilal Nehru, father of Jawaharlal Nehru, they were having a notion to just be a part of the council elections. यानी काउंसिल इलेक्शन में भाग लेंगे। काउंसिल इलेक्शन का मतलब कि भारत में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश गवर्नमेंट चुनाव करवाएगी। इस चुनाव में ये ग्रुप ऑफ जो मॉडरेट लीडर्स थे, लेड बाय मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, they were willing and wishing to be a part of that election, कि इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में भाग ले। अब यहां से कंट्रडिक्शन आती थी। अब बोलेंगे सर कंट्रडिक्शन क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? There was an issue. If you remember the concept of non-cooperation, it states that not to cooperate to any forms of British institutions and services and boycotting British manufactured goods. So participating in the council election means just supporting the British government. क्योंकि चुनाव कौन करवा रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट करवा रही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चुनाव करवा रही है और वो चुनाव हिंदुस्तान के सरजमी पे होगी और हिंदुस्तानी उसमें भाग लेंगे, मतलब हम उनके द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो भावना आएगी, यही एक मेजर इशू होने वाला है आगे जब हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। तो जो ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स थे, दे विल फॉर्म द स्वराज पार्टी। तो अब बच्चों के पास समझ में आनी चाहिए कि कैसे धीरे धीरे ये जो कारण थे, ये कारण अपने अपनी जगहों पे धीरे धीरे इस मूवमेंट को कमजोर कर रहे थे। फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है और उनके राज में ये मूवमेंट चले, तो क्या वो चुपचाप बैठेंगे? क्या वो मूक दर्शक होंगे?
वो क्या करेंगे? वो अपने पूरे प्रयास करेंगे इस मूवमेंट को दबाने के। मतलब they follow a number of suppressive measures to suppress the movement. Satyagrahis were arrested, they were put behind the bars, लाठी चार्ज, और very much common. गिरफ्तारियां, लाठी चार्ज, अंधाधुंध, ये चलेगा, और it was going on. अब क्या? जेल भरने लगे, बड़ी संख्या में हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया जाने लगा, लीडर्स गिरफ्तार होने लगे, गांधी भी गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, सजा भी हुई। तो अब ये जो मूवमेंट के कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने मूवमेंट को वीकेंड करने का काम किया, ये सारे कारण। तो अब आपको ये याद रखना है, और लास्ट कारण हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अबाउट द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो वी हैव सीन कि these are the major reasons why did Gandhi withdraw the movement। ये आप याद रखिए, कुछ नहीं है, खुद को उस परिस्थिति में खड़ा कीजिए जिस परिस्थिति में ये मूवमेंट चल रही थी। तो आपको उस मूवमेंट की खामियां, उस मूवमेंट की अच्छाइयां, उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस आपको समझ में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो फिर से समअप कर लेते हैं। अगर 1 मार्क्स के लिए इमीडिएट कॉज की बात हो या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस का आंसर पूछा जाए कि व्हाई डिड गांधी विथड्रॉ द मूवमेंट, तो आपका जवाब चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर के हो। यदि आपसे ये डिटेल में 3 नंबर के लिए पूछा जाए या 5 नंबर के लिए पूछा जाए तो आपको इन सारे कारणों को बताना। एक और चीज, ये जो केस है चौरी चौरा, ये आपको मैपिंग के लिए भी पूछा जाएगा। फॉर लेवल एंड मेंटल पूछा जा सकता है कि अ प्लेस वेयर 22 policemen were killed, या just locate the place where an incident had happened after that Gandhi had decided to withdraw the movement। तो ये सारी चीजों को आप नोट कर लें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। आगे टॉपिक को हम लोग जो पढ़ेंगे वो है व्हाट वी गेट आफ्टर द मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट के बाद, यानी इफेक्ट ऑफ मूवमेंट और रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमें किन चीजों की प्राप्ति हुई। अब हम उसकी एनालिसिस को पढ़ेंगे। नाउ बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमी, हमने अभी पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पिक्चर। तो मूवमेंट के बाद हमें मिला क्या, व्हाट वी गॉट आफ्टर द मूवमेंट, द रिजल्ट्स। क्या क्या देखा हमने? बायकॉट देखा, डेफिनेटली। फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन गुड्स को हमने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। व्हाट अल्टीमेटली हैड हैपेंड, दिस अल्टीमेटली लीड इकोनॉमिक लॉस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिमेंबर, the main motive behind the boycott and Swadeshi movement to just break the spinal cord of British economy। उनको लाभ हुआ, उनके सामान हमारे यहाँ बिकते थे तो पैसा वो लूट के ले जा रहे थे, अगर उनके सामान नहीं बिकेंगे तो इकोनॉमिक लॉस होगा। एंड दैट इज द मेजर थिंग। मीन्स through the non-violent ways, Congress and Gandhi suggested to just throttle the British Empire in India. If they will not earn, how could they expand in India? They cannot expand in India.
तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, याद रखिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कपड़े को इस्तेमाल नहीं करने से क्या होगा, उनका कपड़ा नहीं इस्तेमाल करने से क्या होगा। बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकती है। अब गौर कीजिए, एक छोटा सा डाटा मैंने लिखा है। 1921-22 के पहले जो फॉरेन क्लोथ्स का व्यापार 102 करोड़ रुपीस, उस समय 102 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड से यहां कपड़े मंगा के करती थी, वो लगभग हाफ हो गई, 57 करोड़। इट वाज अ ह्यूज ब्लो टू द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। तो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट की एक बड़ी उपलब्धि आर्थिक रूप से अंग्रेजों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना है, उनकी उस लाइफलाइन को कट करना है, मतलब वो स्रोत जिससे उनकी ताकत है, वो पैसा, धन को वहां जाने से रोकना है। फिर आते हैं, in many areas merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade। ये हमने पढ़ चुका है, बाइकआउट करने के क्रम में इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उनके साथ सहयोग करना बंद कर दिया। नेक्स्ट, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स boosted Indian textile mills and handlooms। I have emphasized once we were discussing about early experiments of Gandhi on Satyagraha, when we were discussing about Ahmedabad Satyagraha। If you remember, I had explained this was a workers' Satyagraha, workers' movement that was against the Indian mill owners। Gandhi intervened, and after that the mills were reopened। Why? Gandhi was very much worried कि जब हम बाइकआउट कर रहे हैं सामानों का, उस प्रकार की चीजें बना रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलनी चाहिए। और ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स क्या हुआ था, जो ब्रिटिश इंपोर्ट जो इंडिया में आ रही थी इंग्लैंड से, वो रिड्यूस हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंग्लैंड दे वर जस्ट प्रोड्यूसिंग द वॉर रिलेटेड मटेरियल्स। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम उस मार्केट को ग्रैब कर सके, तो हमारी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स को पनपने का मौका मिला। ये एक ही पॉजिटिव चीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट। अन्यथा हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडियन इकोनॉमी को रियून कर दिया, बर्बाद कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो हमने सारे आंदोलनों को उसके अलग अलग चरणों को पढ़ा, क्या निकल गया? कांग्रेस इमर्ज्ड as a party of Indians। But it doesn't mean that Congress was not known to Indians during the extremist days, during the Lal Pal War, when Bal Gangadhar Tilak, Lal Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal or Arvind Ghosh were operating, leading the Congress. It was the extremist days. On that time also, Congress got its root deeper in the Indian society. But there was a limitation. On that time, the Congress was just reached up to the middle class. But during the leadership of Gandhi, Congress reached the common people of India. जो सबसे डाउन पे है, बॉटम पे है, वहां तक कांग्रेस पहुंच गई। वहां से भी लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे, because following or participating in the movement led by Gandhi and Congress was very much simple। यहाँ कहीं भी मारपीट नहीं करना है, जान गंवाने की बात नहीं आ रही है। It was easy to follow। तो कांग्रेस emerged the party of Indians and Gandhi emerged as a leader, mass leader। What is the meaning of mass over here? Mass leader means जनता के नेता। ये एक नई उपलब्धि थी, एक नए डायमेंशन थे गांधी के इमरजेंस। अब गांधी एक नए मूवमेंट की ओर चले, जो हम देखेंगे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बच्चों ध्यान देंगे, इस मूवमेंट के बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद, यू विल गेट वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। You might be surprised that from 1922 to 1929-30, you might not
not notice Gandhi as a active politics. Means Gandhi was out of the political frame of India. गांधी भारत के सक्रिय राजनीतिक मंच से आपको ओझल दिखते हैं। इस बीच में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखी। तो प्रश्न है गांधी गए कहां? गांधी was in villages. He was touring different villages of India. Why? पिकनिक मनाने गए थे गांधी? No. Gandhi was in the villages to just create awareness regarding the freedom struggle of India. During the non-cooperation movement, Gandhi felt that from countryside he had not got the proper participation. In countryside, due to the casteism, due to the difference in social status, there were the major issues due to which different societies were not standing together, like zamindars and peasants were not standing together, rich and poor were not standing together in the freedom movement, in the non-cooperation also. So Gandhi had decided to work in those areas. यानी आंदोलन को मजबूत करना है तो भारत के समाज के अंदर जो ये एक विरोधाभास है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा होता है या एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो भारत की जो सामाजिक एकता है उसमें जो कमियां थी गांधी ने उसे नोटिस किया। तो अब गांधी गांवों में घूम रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों के बीच काम कर रहे हैं। महिलाओं के पार्टिसिपेशन को उन्होंने नोटिस किया कि इवन तो nearly 50% women population was there, but the participation was almost negligible. These were some issues. और इन्हीं प्रश्नों की तलाश में गांधी अब सक्रिय राजनीति से ओझल होकर के गांवों में हैं, वो सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं। ये गांधीयन मूवमेंट की एक बड़ी ही खूबसूरती है। इसलिए कई बार हम ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि गांधी वास्तव में एक पॉलिटिकल लीडर है या एक सोशल रिफॉर्मर है, परंतु सत्य एक अलग है। गांधी वास्तव में एक फिलॉसफर है, एक आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रोपोगेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया। तो कई बार वो राजनीतिक मंच पे दिखते हैं एज राजनीतिक एक पॉलिटिकल लीडर, और कई बार वो समाज के साथ काम करते दिखते हैं तो वो एक सोशल रिफॉर्मर दिखते हैं। तो गांधी गांव में काम करेंगे। अब देखिए, जाति प्रथा के खिलाफ गांधी ने गांवों में इस पीरियड में कई सारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किए, इंडिविजुअल मूवमेंट शुरू किए। दलितों के लिए टेंपल एंट्री के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि आपको पता होगा कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। दलित अगर मंदिर में प्रवेश कर जाए तो कहा जाता है मंदिर अपवित्र हो गई और भगवान भी अपवित्र हो गए। दलितों की मंदिर में प्रवेश वर्जित थी। उनके लिए कुएं अलग होते थे, स्कूल्स वगैरह में उनकी कोई जगह नहीं होती थी। उनके लिए तालाब का दूसरा हिस्सा होता था जहां पे अपर कास्ट के लोग नहीं जाते थे, वहां वो जाते थे। तो गांधी हैड नोटिस दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हिंड्रेंस, एक बहुत बड़ी कमियां है भारत के सामाजिक एकता में। तो गांधी वहां पे टेंपल एंट्री में सत्याग्रह करेंगे। वो इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि भारत का समाज दलितों को अपने बराबर समझे, उच्च जाति के लोग उसे बराबरी का हिस्सा दे, तभी ये दोनों खड़े होंगे तो भारत की आजादी मजबूत होगी। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। आप ये ना समझना कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद गांधी डर गए, गांधी घबरा गए इसलिए गायब हो गए, ना। He had analyzed the movement, he got the weaknesses of the movement, and now he was working on those weaknesses. And actually, it was a way for preparing for another mass movement that was coming in 1929-30,
Actually, it was 30 when he was started. It was the civil disobedience movement. It is called सविनय अवज्ञा आंदोलन with the Dandi March. तो बच्चों, ये चीजें हैं, ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के इफेक्ट्स क्या हुए. अब हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वराज पार्टी की. हम देखेंगे कि जब गांधी पॉलिटिकल एरिना से ओझल थे, वो गांव में थे, उस समय भारत की सक्रिय राजनीति को किसने आगे बढ़ाया? When the non-cooperation movement was withdrawn, there was a widespread sadness among Indians. They felt that कि शायद अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज हिंदुस्तान से कभी अस्त नहीं होगा. वो इस चीज को स्वीकार करने लगे कि अंग्रेजी सत्ता को दुनिया से हटाना मुश्किल है. बिकॉज देयर वाज अ वे, जब ब्रिटिश क्लेम करते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता है, यानी इतना वास्ट एम्पायर. और ये एक बड़ी आंदोलन थी पहली बार, और ये आंदोलन अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाए. गांधी ने विड्रॉ कर दिया. इवन गांधी वाज criticized by the congressmen. A number of Congress leaders criticized Gandhi for withdrawing the movement when the movement was at its climax. कई लोगों ने गांधी को डिक्टेटर कहा कांग्रेस के अंदर कि एक तानाशाह की तरह गांधी ने विड्रॉ कर दिया. उन्होंने पूछा नहीं लीडर से. When Gandhi was asked why he did so, he said that once the violent incident has started, we cannot stop the British for their repression measures. वो जब सप्रेस करना शुरू करेंगे, अत्याचार करना शुरू करेंगे, तो उससे हम सत्याग्रहियों को नहीं बचा पाएंगे. हिंदुस्तान को वो एक मरघट बना देंगे. इसलिए विड्रॉ करना जरूरी था. उन्हें ये भी कहा गया, नेहरू ने कहा कि बापू, एक बड़े आंदोलन के क्रम में इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं को ध्यान नहीं दे सकना चाहिए. गांधी हैज सेड कि अगर यही बात है तो वो 22 जो पुलिसकर्मी मरे हैं इस क्लैश में, उनके परिवार वालों से जाके कहो. गांधी वाज वेरी मच कन्विंस्ड विथ हिज ओन वेज. एंड जब उन्हें कहा कांग्रेस के अंदर लीडर्स ने कि बापू, आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है, लोग नहीं रुकेंगे, आपके मना करने के बाद, विड्रॉ करने के बाद भी मूवमेंट चलता रहेगा. गांधी सेड, मैं उन्हें रोकूंगा. एंड ही डिड इट. सच अ ग्रेट पर्सनालिटी हैविंग ग्रेट होल्ड टू द माइंड्स एंड हार्ट ऑफ इंडियंस. उन्होंने उपवास किया एक पश्चाताप के रूप में कि वो मानते थे कि उनकी ही वजह से वो 22 पुलिस वाले मारे गए. और गांधी ने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अपनी कॉल से और अपने डिड से विड्रॉ भी किया. लेकिन वो विड्रॉ एक हार नहीं थी. वो गांधी मूवमेंट की एक और महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी कई बार आगे चलते हुए दिखेंगे और अचानक आपको कुछ कदम पीछे हटते दिखेंगे. विड्रॉ अ वे ऑफ कीपिंग इटसेल्फ बैक. फॉर व्हाट? Had he accepted his defeat? No. He was just trying and preparing for the next movement. तैयारी के लिए उन्होंने वक्त लिया, अपनी कमियों को पहचान करके. आपने देखा होगा कि शेर की शिकार करने से पहले कुछ कदम पीछे हटता है ताकि वो अपने शिकार की दूरी, लंबाई, चौड़ाई, उसकी गति को माप सके. गांधी मूवमेंट के साथ भी यही चीज है. तो जब पॉलिटिकल एरिना खाली थी तो उस समय स्वराज पार्टी ने, मैंने जिक्र किया काउंसिल इलेक्शंस की बात मैंने की थी इसके पहले वाले स्लाइड में, कि काउंसिल इलेक्शंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अंदर या ग्रुप ऑफ मॉडरेट लीडर्स लेड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू वर जस्ट शोइंग देयर डिसएग्रीमेंट विद द गांधी. तो वो आएंगे, दे वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट दे हैड kept the enthusiasm of Indians alive. जब लोगों को लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गांधी भी पोलिटिकल एरिना से
ओझल थे, तो इन लोगों ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। काउंसिल इलेक्शन में भाग लिया, लेकिन काउंसिल इलेक्शन में जाकर के चुनाव जीत करके इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की, अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की कटु आलोचना की और लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रू नेचर से भी अवगत कराया। तो अगले टॉपिक्स में हम लोग स्वराज पार्टी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे।